أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة خبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ اسی صورت کی یعنی سورہ بنی اسرائیل ہے، ان آیتوں سے پہلے 4 آیتیں پڑھ کر آپ کو ان کا معنی اور مطلب بتایا تھا، اور آج 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں. یہ بڑے اہمیت والے آیتیں ہیں. ان کے اندر ایک خاص بات اللہ تعالیٰ بتایا ہے، تو ان آیتوں کو، ان باتوں کو غور سے سننا اور سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور انسانوں کو سیدھی راہ چلنے کے لیے اور نیک راستے میں چلنے کے لیے، انسانوں کی زندگی کامیاب ہو کر، دنیا کی زندگی آخرت میں کامیاب ہو کر جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا ہے. پیغمبروں کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی دیا ہے. یہ 2 چیزیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے آنکھوں کو نظر نہیں آتا، دستا نہیں، لیکن اللہ کو بغیر دیکھے بھی اس کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ایسی ہیں دنیا کے اندر. ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد آٹومیٹک یعنی خود بخود انسان کا دل پکار اٹھتا ہے کہ ہاں ایک مالک ہے یہ ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے بغیر یہ دنیا نہ بنی ہے، نہ اب تک چلی ہے، اب نہ چلے گی. یعنی اللہ کے بغیر یہ دنیا بن نہیں سکتی اور چل نہیں سکتی. یہ خود بخود اس کا دل پکارتا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد. تو اب 2 باتیں جو ہیں، وہ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو، نبیوں کو بھیجا ہے ایک، اور دوسری بات اللہ کی کتابوں کو دیا ہے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا ہے، ہر علاقے میں پیغمبروں کو بھیجا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے سیدھا راستہ بتانے والا ہم بھیجے ہیں. وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر ایک زمانے کے لیے ایک کتاب بھیجے ہیں. اب وہ سارے پیغمبروں کے نام بھی ہم کو معلوم نہیں ہے، سارے کتابوں کے نام بھی ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 25 پیغمبروں کے نام بتایا ہے اور 4-5 کتابوں کے نام بتایا ہے. یہ کتاب جو ہے سب سے بڑی کتاب، آخری میں جو آئی ہماری کتاب قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے، جسے ہمیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، نماز میں ہی پڑھتے ہیں. دوسری کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو دیا وہ انجیل ہے. ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دیا وہ تورات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب دیا زبور ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ صحف ابراہیم، ابراہیم کے صحیفے یعنی کتابیں. اس کا نام تو نہیں بتایا گیا، لیکن کتاب کا ذکر قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بتایا. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. آج جو اہمیت اور امپورٹنٹ کی جو بات ہے وہ سمجھنے کی، یاد رکھنے کی یہ ہے کہ میں اسے ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں ہماری، اس کے بعد ہمیں اس کے اندر معنی اور مطلب اندر چلے جائیں گے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے یا غلط بولتا ہے تو انہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس کی بات سچ ہونا اور لوگ اس کی عزت کرنا، اس کی وہ برائی چھپ جانا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے انسان. چند لوگ ایسا کرتے ہیں. اگر نہیں چھپی اور وہ برائی
जाहिर होगी तो भी उसे क्या भी परेशानी नहीं। क्यों? उन्हें खुद गलत काम कराया है, मतलब चोराई कराया है, छपा लेना चाहता है, छपी नहीं, वो चोरागी बाहर पड़ेगी। उसके लिए कैसा कैसा की बातें करते हैं उन्हें, वो ऐसा नहीं, ऐसा वैसा, अपने आप को बरी साबित करना, बरी का तो मैं अच्छा आदमी, चोर नहीं कर साबित करने के लिए कोशिश करता है। अगर साबित नहीं कर सका तो भी कोई बात नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्हें चोरी कराया है, उन्हें झूठ बोलता है, गलत बोलता है, तो उससे ज्यादा परेशानी नहीं। लेकिन एक आदमी सच्चा है, ये असल बात है। आज के बयान में, आज के दर्स कुरान में एक अहम और जरूरी बात क्या है कि एक आदमी अपनी बात में सच्चा है, सच बोल रहा है और सच आंखों के सामने नजर आ रहा है, सच बोलता है और बात सच समझ में भी आती है और आंखों के सामने दिखती भी है, नजर भी आती है। ये देखो तीन बात सच बोल रहा है, सच समझ में आ रही है और सच नजर आ रही है सामने। फिर भी लोग अगर उसकी बात को इनकार कर दें कि तुम्हारी बात को हम नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात सच नहीं है और तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है, वजन नहीं है, तो कितना दर्द होगा बात उस आदमी को, कितनी तकलीफ होगी कि मैं जो बोलता हूं सच है और उसकी निशानी भी है, प्रूफ भी है और समझ में भी आती है बात, फिर भी ऐसे दलाइल उस आदमी से पूछें, दलाइल ऐसे प्रूफ उससे पूछें जो कोई आदमी कर ही नहीं सकता, वैसे प्रूफ अगर उसे पूछें तो कितना दर्द होगा, कितनी तड़प होगी उस आदमी को और कितनी परेशानी होगी। तो ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई। आपके साथ ऐसा वाकया पेश आया तो वो बात अल्लाह ताला यहाँ कुरान में बताता है कि हमारे नबी सच्चे हैं, हमारे नबी सच बोल रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, सच समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी मानने वाले जो सामने बैठे हैं, सुनने वाले, सुनकर उस बात को आंखों से लगाना चाहिए, सीने में बिठाना चाहिए और अमल करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? उस सच्ची बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है और अमल करने के लिए तैयार नहीं है और उस पर एक ये क्या है कि इनकार करने का अंदाज उनका ऐसा था कि इनकार कर रहे हैं और इनकार करने का तरीका ऐसा है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उस तरीके से उस बात को साबित नहीं कर पा रहे हैं। बात सही है लेकिन उनके हिसाब से उस बात को साबित नहीं कर सकते, वही से डिमांड उन्होंने रखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। नबी साहब ने बताया कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह मुझे भेजा है और मैं आप लोगों की भलाई के लिए बता रहा हूं, मेरी बात मानो। तो वो लोग तो बात इनकार करे, कहे कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, इनकार करे और चंद उनके डिमांड रखे, अगर आप सच्चे नबी हैं, अगर आप सच्चे नबी हैं तो ऐसा करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ। तो उनके डिमांड्स क्या है मैं आपको सुनाता हूं। बड़ा अच्छा बयान है ये, बहुत जबरदस्त बयान है, याद रखने की का बयान है। तो अल्लाह ताला उनके उन सारी बातों को कुरान के अंदर जिक्र कर दिया और क़यामत तक ये बातें बाकी रहेंगे, लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त की परेशानी को समझेंगे। और अल्लाह ताला आपको तसल्ली भी दिया साथ ही साथ, ऐ नबी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी सच्चाई जाहिर करने, साबित करने के लिए इन्हें मानो या ना मानो कोई बात नहीं, और इनके डिमांड के हिसाब से आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या डिमांड करते हैं उन लोग? देखिए, वक़ालू लन नु'मिन लका हत्ता तफजुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ऐ मोहम्मद अगर आप सच्चे नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो क्या करो, जमीन में से एक चश्मा निकालो, पानी, तुम्हारी ताकत से, तुम्हें दुआ करती कि तुम्हें क्या मंत्रमा पढ़ती कि आयता पढ़ती, क्या करती मालूम नहीं। हमारे हिंदुस्तान में तो पानी हर जगह है, लेकिन अरब का इलाका ऐसा है, सारी दुनिया में तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबा है सऊदी अरब, एक नदी भी नहीं। स्पेशल सारी दुनिया में स्पेशल सऊदी की स्पेशलिटी क्या है कि 2000 किलोमीटर ये किनारे से वो किनारे तक है, तकरीबन
लेकिन एक नदी भी नहीं, हमारे जैसा नदियां ही नदी भी नहीं, कहाँ की थोड़ा थोड़ा पानी है। तो उन्होंने क्या डिमांड करे, अगर आप सच्चे नबी हैं, मक्का कैसा इलाका, मक्के में पूरा पहाड़ा, पूरे पहाड़ा, जो लोग देखे उन्हें जानते हैं, पूरे पहाड़ा, और पहाड़ा के उधर क्या है, बालू, रेत जिसे कहते हैं, वहां पानी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उनका डिमांड यह था, अगर आप सच्चे नबी हैं तो जमीन से एक चश्मा उबाल फाड़ करके निकाल के दिखाओ, हम आपको मान लेंगे कि आप सच्चे नबी हैं। कुरान की आयत सुनाते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, यानी पूरी जिंदगी आपकी 40 साल की जो देखे वो लोग, वो खुद कहते थे कि ये आदमी सच्चा है, ये आदमी अमानतदार है, अमीन है। लेकिन जब आपको पैगंबर मानने की बात आई तो क्या बात रखे, अगर आप नबी हैं तो ये काम करके दिखाओ। ये काम मामूल से हर इंसान से होने वाला नहीं, इंसान से होने वाला नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की ताकत से होने वाला काम। जमीन से ऐसा चश्मा फूटकर बुड़ 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 ऊपर पानी आ जाना और आकर बहता जाना पानी। अगर आप नबी हैं तो ये काम करो तो हम आपके ऊपर ईमान लाएंगे। ईमान लाने का मतलब क्या, तुम्हें नबी कर को कबूल लेती, हमें मान लेती, तुम्हें अल्लाह के नबी करो। एक डिमांड। फिर दूसरा डिमांड क्या रखे, औ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिन व अनबिन फतुफज्जिरुल अनहारा खिलालहा तफजीरा, या एक खजूरों का बाग लगा करके दिखाओ और अंगूरों का बाग लगाओ, और उसके अंदर से नीचे से क्या होना, नहरें, नाले, पानी का नाला जाता रहना हमेशा। और वो जगह तो ऐसी है वहां कोई चीज पिकने वाली नहीं है, वो खजूर थोड़ा पिकते हैं, बाकी के अलावा दूसरे क्या चीजें भी वो जमाने में पिकते नहीं थे, बहुत कम पिकते थे। गेहूं खाते थे वो लोग, गेहूं की रोटी, या नहीं तो ऊँट का गोश्त खा लेते, दूध पी लेते, बकरियां का गोश्त खा लेते, कुछ भी खा ले पी लेकर गुजार रहते, भूखे भूखे रहते थे वो लोग। हमारे जैसे इतने ज्यादा तरकारियां, ऐसे खाने पीने की जो चीजें आज मिलते हैं हमारे पास है, वैसी चीजें उनके पास मिलते नहीं थे। तो वैसा डिमांड करके दिखाए, आप नबी हैं, आप पैगंबर हैं, सच्चे हैं, तो हम आपके ऊपर ईमान लाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या हमारी, एक बाग लगा कर दिखाओ, अंगूर का बाग लगाना। और अंगूर की तो हमको मालूम अच्छी तरीके से पानी की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है, पानी ज्यादा होना, सूखी जमीन में तो अंगूर पिकता नहीं। अंगूर और क्या होना, खजूरों का एक बाग होना, पूरा भरपूर बाग होना, ऐसा बना करके दिखाओ। और तीसरा भारी डिमांड, भारी 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 डिमांड, क्या करते हैं, और तुस्कित समा कमा ज़अमता अलैना किसफा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, क़यामत के दिन ये आसमान फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क़यामत के दिन ये आसमान फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोले तो बोले, आहा वैसा क्या, अच्छा एक काम करो, अब वो टुकड़े टुकड़े करके दिखाओ, फाड़ कर दिखाओ, आसमान को फाड़ो, टुकड़े टुकड़े हो जाना, जब हमें तुम्हारे पर ईमान लाएंगे, भरोसा करेंगे। बताओ, आपको अगर ताकत है, आप सच्चे नबी हैं तो बताओ, आसमान को फाड़ो, जैसा कि आप दावा करते हैं, बोलते हैं ना तुम्हें क़यामत के दिन आसमान फट जाता है, तो आज फाड़ कर दिखाओ। ये इंसान के हाथ की चीज नहीं है, इंसान की ताकत की चीज नहीं है। चाहे नबी भी हो, नबी की भी ये ताकत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। इसके बाद मैं आपको चंद बातें बताऊंगा। पैगंबरों के जो मोजिज़ात हैं, यानी मोजिज़ा कहते हैं ऐसा काम जो मामूली इंसान नहीं कर सकता, और वो काम ऐसा होता है कि इंसान को समझ में नहीं आता ये कैसा हुआ। इंसान की समझ से बाहर, समझ से ऊपर ना समझ सकता है इंसान, ना कर सकता है, ना समझ सकता है। ऐसे कामों को अल्लाह ताला नबियों के जरिए से चंद दिनों में, चंद मौकों में अल्लाह ताला करा के दिखाया। तो उसके लिए सबसे बड़ी मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। आग की सिफत क्या, आग की ताकत क्या, अंगार में क्या चीज जब जल जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठाकर फेंके तो अल्लाह ताला बचाया। आसमान से हुक्म हुआ, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, अरे आग तू ठंडी हो जा और सलामती के साथ मेरे इब्राहिम को क्या भी होना नहीं। तो ऐसा काम अल्लाह ताला जो दुनिया में रखा है सिस्टम, वो सिस्टम को ब्रेक करना, वो सिस्टम को अपोजिट करना, वो सिस्टम को आड़ा करना, वो काम हुए जिसका करना,
तो इसे बोलते हैं मोजिजा। ये दुनिया में कौन भी कर सकते नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है, पैगंबरान से भी होता नहीं। पैगंबरान की सच्चाई और पैगंबरान की हकीकत बताने के लिए अल्लाह ताला करा को दिखाता है कि देखो मेरे इब्राहिम सच्चे नबी ही, तुम्हें अंगारे में दाल को जलाना चाहे लेकिन जले नहीं। वो दूसरा कौन इंसान जाग पड़ा तो भी जल को खाक हो जाता है, कोयला कोयला यानी कोलसा कोलसा हो जाता है। दूसरा यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मछली के पेट में पहुंचाया। मामूल से मच्छी का तो एक चीज खाए तो हजम कर डालती है, 24 आवर्स में हजम हो जाता है, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में गए लेकिन हजम हुए नहीं। अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं, हजम करना नहीं, रख तेरे पेट में। फिर दूसरे दिन वो एक खाए कर डाली। तो ये काम दुनिया में होने वाला नहीं मामूल से, लेकिन अल्लाह करके दिखाया, अल्लाह ताला करके दिखाया। और मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हाथ में लकड़ी थी, आसा नीचे डाल के ही सांप हो गया, बड़ा सांप एकदम। तो ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता, पैगंबरान से भी होता नहीं, लेकिन अल्लाह ताला पैगंबर की सच्चाई दिखाने के लिए अल्लाह करके दिखाता है। देखो हमारा नबी सच्चा आदमी है, मेरे तरफ से भेजा हुआ रसूल है, पैगंबर है, करके दिखाता है। तो सांप हो गया, लकड़ी जो थी वो सांप हो गया। और उससे बड़ी चीज जो है, पानी की आदत यह है कि वो पानी मिलकर रहता है और ढलान की तरफ जाता है, पानी कभी भी रुकता नहीं, खड़ता नहीं ऐसा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला फिरौन से बचाने के लिए क्या करा, समंदर को फाड़ करके ऐसा पानी को दीवार के मानंद खड़ा कर दिया। पानी कभी भी दीवार के मानंद खड़ने वाला नहीं। जब से अल्लाह दुनिया पैदा किया है, पानी कभी भी खड़ने वाला नहीं, पानी मिल जाने वाला, लेकिन अल्लाह ताला खड़ा करके दिखाए। देखो मेरे नबी को मैं बचाने के लिए, मेरे नबी की उम्मत को बचाने के लिए मैं कैसा करता हूँ। तो इनको क्या कहते हैं, मोजिजे। मोजिजा का मतलब इंसान की अक्ल को आजिज कर डालने वाली चीज, इंसान के अक्ल में समझ में नहीं आने वाली चीज, ये काम कैसा हुआ और कोई दुनिया का इंसान कर नहीं सकता, ऐसे काम को अल्लाह ताला करा के दिखाता है। वो कब कराता है, अल्लाह जब चाहता है, अल्लाह की मर्जी जब होती है उस वक्त वो काम होता है, हमेशा होता नहीं, हमेशा होता नहीं। तो ऐसे डिमांड नहीं नो करते ही। और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला कैसे मौजूदे दिया था आपको, अंधे आदमी के आंखों पर हाथ रख के दुआ करते तो फौरन रोशनी आ जाती, हंगा दिखने शुरू हो जाती। सिर पे बाल नहीं है, हाथ फिराते तो सिर पे बाल आ जाते। कमर झुक गई है और पीठ के ऊपर हाथ रखते, आदमी उठ के सीधा खड़े हो जाता। और यहां तक के आदमी मर गया है, मरने के बाद दुनिया में कोई इंसान जिंदा हो सकता नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ हाथ रखो, और हाथ रख करके बोलो खुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ, तो अल्लाह के हुक्म से उन्हें जिंदा हो जाता था। एक बार इंसान मरने के बाद फिर कभी दुनिया में जिंदा हो सकता नहीं, और किसी की ताकत नहीं जिंदा करने की, पैगंबरों को भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला करा के दिखाता है कि मेरा नबी सच्चा है। उसके लिए प्रूफ देखो क्या होना, विटनेस क्या होना, तुम्हारे लिए प्रूफ होना क्या, मेरा नबी ही, सच्चे नबी ही, तुम्हें करके दिखाओ, दुनिया में कौन करके दिखा नहीं सकते। तो ऐसे मोजिज़ात अल्लाह ताला कराता है, किसके जरिए, पैगंबरों को के हाथ से कराता है अल्लाह ताला। अब यही हाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी हुआ, चंद कामा हुए हैं, लेकिन इन्हें जो पूछे हैं ये भारी कामा ही, वैसे वो लेवल के कामा। तो उसके बाद क्या पूछे उन्होंने, आसमान को जैसा तुम्हें दावा करते हैं, बोलते हैं ना, आसमान चिरे जाता है, फट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, करके दिखाओ। तो कितना डिमांड है, तीसरा। पहला क्या, जमीन से चश्मा उबालना। दूसरा क्या, बाग, अंगूर और खजूरों का बाग, और उसमें नाले बहना, नदियां, छोटे छोटे नहरें, या आसमान को फाड़ करके दिखाओ, तीसरा डिमांड। और चौथा डिमांड क्या था, औ ताती बिल्लाहि वल मलाइकति खबीला। ये नहीं कर सकते तो तुम्हें एक काम करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को फरिश्तों को हमारे सामने लाकर खड़ा करो। वाह, इससे बड़ा सा डिमांडिंग नहीं दुनिया में, इससे बड़ा सा डिमांडिंग कौन भी कर सकते नहीं। लाओ, तुम्हें अल्लाह है कर बोलते, ला खड़ा करो हमारे सामने, दिखाए तो यहाँ है, अल्लाह मैं देखती, पता जा तुम्हें अल्लाह के नबी, यानी तो फरिश्तों को लाकर खड़े कर दिखाओ हमारे सामने आप खड़े ना,
यही सवाल मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग करे थे। वक़ालू या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जारतन। मूसा अलैहिस्सलाम एक 70 आदमियों को, खास आदमियों को बुला लेकर गांव के बाहर गए थे, तूर पहाड़ के पास, कोहे तूर जिसे बोलते हैं, अल्लाह के अहकाम उनको पहुंचाने, सुनाने, समझाने के लिए। तो वो लोग भी एक डिमांड करे थे। क्या डिमांड करे थे? मूसा, तुम्हारी बात पर हमें भरोसा करते नहीं, तुम्हारे पास वही आती है, फरिश्ता को तुम्हारा सुनाता है, ये सब हम मानते नहीं। अगर मानना है तो एक काम करो। क्या काम करो? हमारे हिंकियां के सामने अल्लाह को दिखाओ खुल्लम खुल्ला, दिखाए तो हमें मानते। तो अल्लाह ताला को इतना ज्यादा गुस्सा आया उस वक्त में, अल्लाह ताला एक बिजली को भेजा और वो बिजली आके पड़ी, 70 आदमियां पूरे एकदम मर गए, सेकंड में खत्म हो गए पूरे भी। नालायक कहा कि अल्लाह को देखना नहीं है तुम्हें, कहते नहीं हमें अल्लाह को देखने को वाले, तुम्हें उतनी ताकत तुम्हारे पास है क्या? उतनी कैपेसिटी है तुम्हारे पास? तो पूरे मर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान परेशान, अल्लाह मैं क्या करूं, अब मैं क्या जवाब दूं? जा करके मैं गाँव में गया तो लोग पूछेंगे, हजरत हमारे खास आदमियों को तुम्हें बुला लेकर गए ना, अच्छे समझदार आदमियों को, बड़े अच्छी उम्र वाले आदमियों को, अच्छे आदमियों को सबको बुला लेकर गए, कहाँ उन्होंने क्या कर पाए? तो मैं क्या जवाब बोल रहा अल्लाह? फिर अल्लाह से मिन्नत समाजत करे, गिड़गिड़ा कर दुआ कर, अल्लाह तो इनको जिंदा कर, अल्लाह तो इनको जिंदा करे तो मैं गाँव में जा सकता, नहीं तो नहीं जा सकता मैं। तो फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से हुक्म दे, उठाओ। उठ गए पूरे 70 आदमी, उठकर खड़े हो गए, चलो। तो ऐसा अल्लाह को देखने का जो डिमांड है, वो सारे डिमांड में सबसे बड़ा डिमांड, भारी डिमांड, इससे बड़ा डिमांड कोई सा भी नहीं। क्यों? अल्लाह को देखने का ये कम अखला जो डिमांड करे ही, अगर अल्लाह का नूर अगर पड़ गया ये दुनिया के ऊपर, ये दुनिया खत्म हो जल जाती, क्या भी रहती नहीं। इंसानों तो क्या, ये पूरी कायनात क्या सब जल जाती, खत्म हो जाती। अल्लाह का नूर पर्दे में है, एक पर्दा है, उधर अल्लाह का नूर है, इधर ये सारी दुनिया है। अगर वो पर्दा हट गया, डायरेक्ट अल्लाह का नूर आकर पड़ गया तो पूरी दुनिया जल जाती है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी आप कई बार सुने। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला, लन तरानी, हरगिज़ देख नहीं सकते, तुम्हारी ताकत नहीं है। और जब अल्लाह के नूर की किरण, एक बारीक रोशनी पड़ते ही मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए, पहाड़ जल गया। तो ये बहुत बड़ा डिमांड था। तो ये डिमांड ये लोग हम भी करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिमांड करते हैं। क्या पूछते हैं? चौथा डिमांड क्या था? अल्लाह को लाओ हमारे सामने और फरिश्तों को लाओ, जब हमें मानेंगे। अच्छा, उसके बाद 5वां डिमांड, औ यकून लका बैतुन मिन ज़ुखरुफिन, नहीं तो एक काम करो, सुन्ने का घर बना लो तुम्हें, दीवारा, ईंटा, छत, सुतूना, तले बैठते से गार, ये पूरा भी सुन्ने का घर बनाओ। कहे कि तो सुन्ना मिलने वाली चीज नहीं, वो मट्टी क्या नहीं, फतरे नहीं, मिलती है लेकिन बहुत कम मिलने वाली चीज हो। और आपको मालूम है दुनिया में कौन सी चीज कितना कम मिलती है कि उसका डिमांड उतना ज्यादा रहता है, उसकी कीमत भी उतनी ज्यादा रहती है। सुन्ना बिल्कुल कम मिलता है। अब हमारे कटके फतरे के जैसा मिलने वाली चीज नहीं, मट्टी के जैसा मिलने वाली चीज नहीं, लकड़ियां के जैसा नीम की लकड़ियां मिलती ना वैसा मिलने वाली चीज नहीं। ये चीजें ज्यादा मिलती तो इनकी कीमत कम है, लेकिन सुन्ना जिसे बोलते हैं सोना, गोल्ड, ये बहुत कम मिलता है तो इसकी कीमत भी ज्यादा है। तो उन्होंने ये डिमांड करे, अरे नबी, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उन्होंने नबी मानते नहीं थे। कहते हैं या मोहम्मद, अगर अब आप सच्चे नबी हैं तो एक काम करके दिखाओ, सुन्ने का घर बनाओ। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसा घर था? मिट्टी की दीवाला, छत का घर था, मामूली घर था। तो ये एक डिमांड करे। इन्होंने क्या चाहते थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हमें मानना नहीं, इनकार करना, और इनकार भी ऐसा कि आइंदा इन्होंने कभी मुंह खोलना नहीं हमारे सामने। उन्होंने साइलेंट रह जाना, खामोश। क्या कभी बोले तो भी तुम्हें नबी है तो ये कर को दिखाओ भाई, कर को बाद में हम सोचते हैं। अगर तुम्हें नबी तो कर से जानी, क्या कर सकती, कर को दिखाओ। अगर कर सकते नहीं तो तुम्हें नबी नहीं, फिर तुम्हारी बात कहीं मानना हमें। उन्होंने चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाना, कभी मैं मुंह खोला नहीं, ऐसे डिमांड अल्लाह कर। अच्छा, 5 डिमांड। 6, छठा डिमांड क्या था इनका?
और तरखा फिस्समा, या नहीं तो हमें पूरे इतना खड़े थी हमारे सामने, तुम यहाँ खड़े हो जमीन में, खड़े को जई कर आसमान में चढ़ जाना, तुम्हें आसमान में चढ़ना, सर ऊपर चल जाना। जैसे आजकल राकेट छोड़े जाते हैं, श्रीहरिकोटे में राकेट छोड़े थे, क्या जाती है वो, उन लोग कितनी दूर भेजना चाहती दूर जाती है। उसमें क्या आदमी क्या रहता नहीं, खाली मशीन सेट कर डालते, बारूद भर डालते, पेट्रोल भर डालते और गैस भर डालती। तो ये तीन चीजों की वजह से वो जलता भी ऊपर को चले जाती है, और अंदर मशीन होती है, उसमें सैटेलाइट है, वो कार हो तो वहां टिक जाती है, कैसे जाती है दिखती है। तो वैसा तुम्हें आसमान में चढ़ो, आसमान में चढ़कर दिखाओ, ऊपर जाओ, जब हमें मानेंगे तुम्हें नबी ही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हमें मानेंगे तुम्हें नबी ही। ये कैसे डिमांड देखो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्ची बात थी कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के बंदो, ये बात को ला करके मैं क्या करें, ऐसे पूरे डिमांड लगाए हैं। उसके साथ और एक डिमांड, तुम्हें आसमान में गए तो भी जाको वापस आके तो हमें सुनते नहीं, वहां को भी सुनते नहीं। अब क्या होना भाई, वलन नुमिन लिरुखय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहू, तुम्हें आसमान में ऊपर गए तो तुम्हें क्या करना, आसमान से ऊपर से एक किताब लेकर आना, वहां से प्रिंटेड ऐसी किताब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान की आयता सुनाते थे वो किताब नहीं थी, जिब्रील सलाम आते थे, आयता सुनाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनको इनको सुनाते थे, किसे, लोगों को सुनाते थे, सहाबा को भी, बाकी लोगों को। लेकिन वो क्या चाहते हैं, ऐसे आयता नहीं, हमने कहा आयता से काम चलता नहीं, अब किताब होना। आसमान में जाको अल्लाह का है, अल्लाह है कर बोलते हैं तुम्हें, अल्लाह तुमने को भेजता है, आयता भेजता है, जिब्रील आते हैं कहते तुम्हें, तो उसके से तुम्हें क्या करो, आसमान में जाओ, उड़कर जाओ, चढ़ कर जाना, सर 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 सर, वहां से ऐसी किताब लेकर आना। और वो किताब कैसे होना, अरबी में होना, हमें पढ़ती वो किताब को, हमें पढ़ना वो किताब। तुम्हें दूसरे लैंग्वेज में लेकर तो हमें सुनते नहीं, अरबी में वो किताब होना, अरबी में होना कर को उनके मुंह से बात निकली नहीं, लेकिन बात क्या निकली उनकी, हमें पढ़ना वो किताब। उनको अरबी आती थी, अब अरबी में किताब होना। इतने पूरे डिमांड ना करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, क्या बोलेंगे। ये काम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर नहीं सकते, अल्लाह चाहे तो करा सकता है। वो अल्लाह को लाकर खड़े करना, वो एक बात चुप कर बाकी काम पूरे करा सकते हैं अल्लाह ताला, क्या भी मुश्किल नहीं, वो काम भी अल्लाह करा सकता है। लेकिन वो सकरा के सुन कौन रहते नहीं, क्या भी पूरा जल जाता, पूरा भी अल्लाह को सामने लाकर खड़ा करने की एक डिमांड चुका को कम के पूरे डिमांड करा सकते हैं अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहता है, मैं चाहूं तो पूरे कर सकता हूं डिमांड है इनके, लेकिन एक एक जना आप एक एक डिमांड, एक एक जना एक एक डिमांड, पूरी जिंदगी डिमांड आपको चलती है, हर आदमी एक डिमांड करता है। तो तुम्हें अच्छी बात को, सही बात को, सुन को, समझ को, अल्लाह की बात मानने, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के करिश्मा को तुम्हें मानने के बजाय तो तुम्हें क्या सोचते हैं, समझ को ईमान लाना, समझ को हमें यकीन करना चाहते नहीं। तुम्हें क्या चाहते हैं, हमारे डिमांड के बराबर है तो हमें ईमान लाती नहीं, तो लाते नहीं कर बोलते हैं। तुम्हें ईमान लगे तो कहता, ईमान ले तो कहता। ऐ नबी आप इनसे बोलिए, ये 6 डिमांड है इनके हैं, ये 6 डिमांड का, सारे डिमांड का एक ही जवाब, वो क्या जवाब, कुल सुभान रब्बी, कह दीजिए आप कि मेरा रब पाक है, मेरा अल्लाह क्या है, पाक है। हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मैं तो एक इंसान, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब कराने की जरूरत नहीं है, मैं तो क्या हूं, मैं एक इंसान हूं, मेरे से क्या ये सब सारे डिमांड तुम्हें करते ही, तुम्हारे डिमांड पूरे कराने की मुझे जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है। तो यहां तक एक बात अच्छी है। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी एक बात आई। क्या दिल में आई बात, अल्लाह इन्हों जरा चीजा क्या कि पूछते ही छोटे मोटे डिमांड ना, ऐसे डिमांड ना अल्लाह चाहते जरा कर को दिखाया तो इन्हें सब भी ईमान लाती क्या कि कलमा पढ़ती मुसलमान हो जाती, मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ के ईमान वाले हो गए तो हमेशा की 2 वक्त से बच जाती नहीं क्या,
ईमान वाले हो जाते, जन्नत को चले जाते, इनका फायदा होता है नहीं क्या? ऐसा कर को इन्होंने क्या करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह क्या तो भी ऐसा कर, अल्लाह ऐसा, तो अल्लाह ताला वो बात का जवाब कैसा दिया? अब तो जब अब तक जो मैं पढ़कर सुनाया सूरह बनी इसराइल 17वां सूरह नंबर, अब जो उसका जवाब है सूरह नंबर 6 सूरह नाम, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, वह इनका ये आयत का माना सुनाकर बात खत्म करेंगे। ये आयत का माना खाली एक आयत है, उसका माना सुनाकर बात खत्म करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, वह इनका न कबूर अलैका इरादुहुम फइन इस्तताअत अन तब्तगी नफखन फिल अर्ज़ि औ सुल्लमन फिस समाई फतातिहुम बि आयतिन वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन। एक आयत, ये आयत का माना देखिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, अगर आपको उनका एराज गिरा गुजरता है, एराज का तो मुंह फिर चल जाते ही, बोले तो सुनते नहीं, मुंह फिरा चल जाते ही, इनको दर्द होता है, दिल को दर्द, क्या भाई मेरी बात सुनते नहीं, मानते नहीं, माने तो इनको फायदा होता है नहीं क्या? इनका भला होता है, इनका दुनिया में भी भला होता है, आखिरत में भला होता है ना। आप क्या होता है, आपको दिल को दर्द होता है, उनका मुंह फेर लेकर चले जाना आपको तकलीफ होती है। इससे आप चाहते हैं कि कुछ मौजूद दिसना और इन्हें ईमान लाना चाहते हैं आप, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता, क्या फरमाता है देखिए, और अगर आपको इनका एराज गिरा गुजरता है, यानी मुंह फेर लग जाते हैं, तो तुम ना को पसंद आता ना है, दिल को दर्द होता है, तो अगर आपको ये कुदरत है कि जमीन में कोई सुरंग बनाने की ताकत है तो बना दिखाओ, तुम्हें बनाओ। अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है, उन्होंने नाचे सरकार नाचने के वास्ते नहीं हूं मैं, उन्होंने बोले से सब कर को दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, और आपको भी जरूरत नहीं है उनके डिमांड आप पूरे कराने की। नहीं, अगर तुम्हें करना चाहे तो करो भाई। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, अगर आप कर सकते हैं तो एक काम करो, जमीन में सुरंग डाल को दिखाओ। सुरंग हम कहते हैं, खोदते नहीं पहाड़ा में, वहां से वहां तक रास्ता, पुराने जमाने में लोग 1 मील, आधा मील, 2 मील, 5 मील सब अंदर रास्ता खोद को दिखाते थे, बनाते थे। तो बल्ला के बल्ला के बरसात काम चल रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन में नहीं, एक आदमी से 2 आदमी से नहीं, बल्ला के करते थे पुराने जमाने में, बादशाह के जमाने में। तो अल्लाह ताला कहता है, अगर आप इनको तसल्ली दिलाना चाहते हैं तो एक सुरंग बनाओ, तुम्हें बना दो भेजो, बना दो नफखन फिल अर्ज़ी, जमीन में कोई सुरंग बना दीजिए, या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लो, या नहीं तो तुम्हें आसमान में ऊपर चढ़ कर जाने का है तो एक सीढ़ी लगा कर चढ़ कर जाओ भाई, तुम्हें करो। कौन बोल रहा है? अल्लाह ताला। किसे बोलता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वास्ते बोलता है? आपको परेशान करने के लिए नहीं, उनकी तरफ से जो आपको तकलीफ होती है उसे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईमान ले के चल, नहीं लेके के चल, लेके तो उनको फायदा है, नहीं लेके तो इनको नुकसान है, नहीं ले तो इनको नुकसान है। आप इसके बारे में क्यों इतना परेशान होते हैं? फतातिहुम बि आयतिन, आसमान में जाकर कोई निशानी, उन्हें पूछे किताब लेकर दिखाओ, अगर वैसा लिखाना है तो आप क्या तो एक मौजूदा निशानी लेकर दिखा दो भाई, तुम्हें करो, ये होने वाला काम तो नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, ऐ नबी, अल्लाह अगर चाहे तो इनके सारे लोगों को हिदायत डाल सकते हैं, पूरे आदमी हिदायत पा सकते हैं, अल्लाह चाहे तो कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहता है, अल्लाह मजबूर करा को, यानी अल्लाह की तरफ से दबाव को, अल्लाह की तरफ से अल्लाह जैसा बना डाले, अब इन्हें क्या भी कर सकना नहीं, वैसा कराना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को कैसा ईमान पसंद है? इंसान अपने दिल से, अपने दिमाग से सोचे, अपने दिलो दिमाग से सोचे समझे, सही क्या गलत क्या समझ कर सही रास्ते को आने की कोशिश करो, जब ना तुझे फायदा होता है। वैसे इसका खाली करामता देख लेता, करामता मौजूद देख लेता रहा तो वो ईमान क्या भी ईमान नहीं। ईमान वो है जो अकल से सोच कर समझ कर उस बात को आदमी सच्ची बात को समझे और सच्ची बात को ले, कबूल कर ले
और सच्ची बात पर अमल करे। ये इंसान का कमाल है, इंसान की खूबी है। सच्ची बात को इंसान अपने आंखों से देखे, कानों से सुने, समझे और उसके साथ साथ उस बात को मान ले, कबूल ले और उस पर अमल करे। ये अल्लाह ताला चाहता है। वैसा नहीं इसका अल्लाह ताला नहीं, ये पूरी दुनिया के इंसान मुसलमान हो जाना कर अगर बोल लेता है तो अल्लाह ताला क्या करता, और सब जन ईमान मानो। अब फिर दुनिया में भेजने का मकसद ही रहता ना, बाकी रहता नहीं। दुनिया में भेजने का मकसद क्या है अल्लाह ताला इंसान को, कि मैं तुझे दुनिया में भेजता हूँ तो अपनी मर्जी से अच्छे रास्ते को पसंद करता है, चुनता है, या बुरे रास्ते को चुनता है, मैं देखना चाहता। अल्लाह ताला इंसान को देखने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। तो वही बात यहाँ बताया, वलौ शाअ अल्लाहु लजमाअहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह ताला चाहता तो सारे लोगों को हिदायत पर जमा कर देता, सीधे रास्ते पर जमा कर देता। फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, आप नादान मत बनिए। क्यों आप नादान बनते हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्होंने नचे सरकार नाचना, उन्हें बोले सरकार सुनना, उनके डिमांड नाम को ये करना, ऐसा आप कहीं सोचते हैं? ऐसा मत सोचिए, आप नादान मत बनिए। इन्हें क्या बात से ईमान नहीं लाते वो भी अल्लाह ताला बता दिया। जब भी इनके सामने अल्लाह की बात आती है, सही बात आती है, तो इन्हें क्या चाहते हैं? अपने बड़े लोगों को देखते हैं, अपने बड़े लोगों को, हमारे बाबा क्या करे, हमारे दादा क्या करे, हमारे चचा क्या करे, हमारे मामू क्या करे, ये देखते हैं। उन्होंने हक बात को, सही बात को लेने, समझने और अमल करने के लिए तैयार नहीं। क्या भी इनके सामने बात आई तो क्या बोलते हैं? पहले सो लोग सब करे नहीं क्या भाई, अब कहीं कहीं हजरत को बोलते हैं सो, इन्हें गणेश क्या हजरत पढ़ी सो, इन्हें गणेश क्या आलिम, इन्हें गणेश क्या कुरान इनके वहां से सेपरेट से आ गए क्या, सारी दुनिया में कुरान है नहीं क्या? फिर वो हजरत सब कहीं बोलते नहीं, वो हजरत सब भी कहीं को बोलते नहीं। हमें मानते नहीं इनकी बात, हमें हमारे बाप दादा कैसा करे हैं, हमारे बड़े इतना पहले से कैसा आता है वैसा हमें अमल करने वाले, वैसा चलने वाले। तो ये बात उनके भेजे में थी, दिमाग में, उनके दिल में थी, और यही बात बोलते थे, यही बात उन्होंने बोलते थे। तो वो बात भी सुनिए, वमा मना अन्नास मिन जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु रसूल बशर रसूला। फिर क्या करते थे? अल्लाह इंसान को कहीं को बनाया, पैगंबर इंसान को कहीं को बनाया, इंसान को बनाने की क्या जरूरत थी? ये भी एक डिमांड उनका एक डिमांड क्या था? अगर अल्लाह फरिश्तों को भेजना है, पैगंबर को भेजना तो फरिश्तों को भेजना था, इंसान को कहीं को भेजा? तो अल्लाह उसका भी जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तुम्हें इंसान चलते फिरते हैं तो उसके वास्ते इंसान को मैं क्या बनाया हूं? नबी बनाया हूं। अगर जमीन में फरिश्ते चलते फिरते रहते तो मैं फरिश्तों को पैगंबर बना के भेजता। अगर फरिश्ता पैगंबर बन को आता तो क्या करते हैं लोग? आसानी से बोलाते, तुम्हें क्या भाई फरिश्ते, तुम्हें जोरू नहीं, बच्चे नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, पेशाब नहीं, पैखाना नहीं, घर नहीं, तुम्हें क्या भी जरूरत ना है, तुम्हें नमाज 5 वक्त क्या 50 वक्त नहीं पढ़ती। हम ना देखो भाई कितने परेशान है, मुझे जोरू है, बच्चे ही, घर है, घरदार होना, बच्चा की जरूरत होना, बीवी की जरूरत होना, मुझे भूख है, प्यास है, नींद आती, मैं सोना उठना, मेरे काम, मैं कमा कर खाना, वाखा पड़ना, तकलीफ पड़ना, कितने कामा करना ना भाई। मैं तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ो, रोजे रोक तो होता नहीं हमारे से, तो फरिश्ता तू करता है, मैं कैसा करना, मेरे से होता नहीं। तेरी मेटीरियल तेरा अलग, मेरा मेटीरियल अलग। लोहा घट है सर का, लोहा आयरन लब्बर हो सकता, क्या होता? घट नहीं हो सकता, होता घट होता नहीं। वो मेटेरियल अलग है, मेटेरियल अलग है। तो ऐसा फरिश्ते का मेटेरियल अलग, इंसान का मेटेरियल अलग, उसकी जरूरत अलग, इसकी जरूरत अलग, तो आसानी से ये चुका लेते हैं। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाया, अगर जमीन में फरिश्ते रहते तो मैं फरिश्ते को नबी बनाकर भेजता। इंसान फिरते हैं तो इसलिए मैं इंसान को नबी बना करके भेजा हूं। फिर आखिर में एक बात बताकर अल्लाह ताला बात खत्म करा। क्या बताया? कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा। आप कह दीजिए
کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، اللہ گواہ کافی ہے۔ میں جو بات تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن کی بات، اللہ کی بات، دین کی بات، آخرت کی بات، قیامت کی بات، جتنے بھی باتیں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میری بات سچی ہے یا نہیں ہے، میری بات سچ ہے یا نہیں ہے، یا یہ بات میں تمہارے تک پہنچایا ہوں یا نہیں پہنچایا ہوں، اس کے لیے اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ بس تمہیں مانو یا نہ مانو، تمہیں بھروسہ کرو یا نہ کرو، تمہیں عمل کرو یا نہ کرو، تمہارے تک بات پہنچانے کی ذمہ داری میری تھی، میں بات کو پہنچا دیا ہوں۔ اور اس کے لیے میرے اس کام کے لیے گواہی کون؟ اللہ کی ذات، اللہ رب العالمین گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ دیکھیے اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، بس اللہ گواہ ہے، اب مجھے کیا ضرورت نہیں ہے، تمہیں مانو یا نہ مانو۔ وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے، آگاہ کا تو جانتا ہے، میں کیا بولا ہوں، تمہیں کیا سنے ہی، کیا کرے ہی، کیا سمجھے ہی، کیا جواب دے ہی اور کیسا عمل کرے ہی، یہ پورا میٹر اللہ دیکھتا ہے اور اللہ جانتا بھی ہے، اللہ کو معلوم بھی ہے، اللہ دیکھتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ آج کے پورے بیان میں یعنی جو فرسٹ بات میں بتایا وہ بات سنا کر بات ختم کرتا کہ ایک انسان سچی بات بول رہا ہے، خود بھی سچا ہے، اس کی بات سچی ہے اور اس کی بات سچی سمجھ میں آتی ہے اور ہنجام کو دستی ہے یہ بات سچی ہے، پھر بھی لوگ کیا کرے، بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو مارے۔ ایک مرتبہ ابو جہل آیا ہاتھ میں کنکریاں لے کر کے اور آ کر پوچھا اے محمد اگر تم سچے نبی ہو تو میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے پوچھ۔ تو کان کے پاس رکھ لیا تو وہ پتھرے میں سے کنکرے لایا تھا انہیں، اس میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اٹھا کر پھینک ڈالا، بولا محمد تیرا جادو اس کے پر بھی ہو گیا کیا؟ یہ پتھرے کے پر بھی جادو کر ڈالے گا تمہیں؟ تو انجا کو دستا ہے، تمہیں سچے نبی کر کو پروف دستا ہے، تمہیں سچے نبی کر کو پروف، جو چیز انہیں لایا وہ چیز بولتی ہے، تو کیا کرنا تھا، فوراً آگے بڑھ کر ہاتھ ملانا، گلے مل کر بھائی میں مان لیتا ہوں تمہیں نبی اللہ کے بولنا تھا۔ لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور جس کی قسمت میں سیدھا راستہ نہیں ہے، انہیں جنت کو جانے کا نہیں ہے، انگار میں جانے کا جس کی قسمت میں ہے، اسے نبیاں بولے تو سنتا نہیں، انہیں خود نبیوں کے سردار بولے تو بھی انہیں ماننے والا نہیں، اور انہوں اپنے اعمال اور اپنے کرتوت سے جہنم کا راستہ پکڑنے والے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پروردگار رب العالمین ہاں جتنے ہمارے بھائیاں بیٹھے ہیں ہم تمام لوگوں کو اسی طریقے سے ساری زندگی قرآن مجید کی باتوں کو سننے، پڑھنے، سمجھنے اور بھروسہ کرنے، یقین کرنے، ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، اور ساری زندگی اسی طریقے سے سنتے رہنے کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ مرتے وقت پر ایمان کی موت عطا فرما، اے اللہ کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرما، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت نصیب فرما، اے اللہ حشر کے میدان میں اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، اے اللہ حشر کے میدان میں تیرے سائے میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرما، اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اور ہمارے سارے مسلمانوں کو جہنم سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرے رحم سے، کرم سے، فضل سے ہم تمام مسلمانوں کو جنت نصیب فرما اور جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔